हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा वीकली करंट अफेयर्स ऑफ दिसंबर मंथ, जो कि 4th वीक के हमारे करंट अफेयर्स होंगे। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपकी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए सेशन अपना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। So friends, we have an app by the name Carriers Cloud which you can go and download in the Play Store. This application is very helpful to you, that will help you in our preparation. All the PDFs, all the current affairs, all the material, all the quiz questions are provided by us on this particular application only. So if you are a government job aspirant, you must have this Carriers Cloud application. Now, once you have downloaded the application, you will move and open it. Then you have to log in with your Gmail ID. Once you have logged in, you will be shifted to this page. Now, if you have purchased our course, then with the course will be providing you daily PDF. In this daily PDF will be giving you multiple questions of the daily, as well as 20 questions quiz will be provided you on the daily basis. Then if we shift to weekly, we will be providing you with the weekly information also, such as weekly quiz of 50 questions each, then weekly PDF combining of whole week's important current affairs. Then if we are talking on monthly basis, we will be doing same on the monthly basis also, that will be providing you with a compiled PDF of the whole month's current affairs that are way important to you. This, if you are in English language student, then you will be provided with English, and you can switch language between English as well as Hindi. Then you should also know we help aspirants to prepare for banking exams also. Multiple quiz questions will be provided you, multiple quiz will be provided you on the daily basis, on monthly basis, on weekly basis, so that it will boost your confidence. Then we'll be providing you information related to various banking exams also. And apart from this, we have started an initiative that is very helpful, that providing you questions with topic wise, such as apps and web portals, important days, books and authors, obituary, national affairs, international affairs, important days, sports, defense, everything. Each topic will contain individual information of that particular month that will boost your preparation to a next level. This is very important. These topic wise PDFs are very important. This will help you very much in boosting your preparations. All right friends, so you should also know, if you use our code Vikas10, we will help you by giving extra 10% discount. So go grab this offer, this will help you a lot. This is a very useful application for an aspirant, so I urge you to go and download and check our plans. तो चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड कितनी सब कमिटीज़ टू लोअर क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम्स अंडर किस योजना के अंडर। तो देखो, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर स्टार्ट हुआ था, और इसके अंडर कितनी सब कमिटीज़ अपॉइंट की हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 2 अपॉइंटमेंट कमिटीज़ या 2 सब कमिटीज़ अपॉइंट की गई हैं इसके अंडर। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 2 सब कमिटीज़ कौन सी रहेंगी, तो आपको वो दोनों पता होनी चाहिए। जो पहली थी, याद रखना, इसमें 10 मेंबर हैं एक तो, ठीक है। और ये किन के अंडर आती है, मतलब इनके चेयरमैन कौन रहेंगे इस कमेटी के? साइंटिस्ट ऑफ इसरो KR मंजूनाथ जी, ये एक इसरो के साइंटिस्ट हैं, ये इस चेयरमैन कमेटी के हेड रहेंगे। और ये किस लिए है? इज टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ अडॉप्शन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस, कि टेक्नोलॉजिकल अप्रोच के बेस से हम क्या क्या अलग टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक। और इसमें दूसरी कमेटी कौन सी रहेगी? वो रहेगी जो कि हेड की जाएगी बाय द जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सौरभ मिश्रा के द्वारा ये दूसरी कमेटी को हेड किया जाएगा, ठीक। तो ये 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं, और जो ये दूसरी मिनिस्ट्री, ये 2 कमेटीज़ है, और दूसरी कमेटी है, इट इज़ टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ऑल एक्सेप्टेड मॉडल्स एंड एनी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग मॉडल, एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स का फाइनेंशियल प्रोजेक्शन भी देगी ये दूसरी कमेटी, जो कि सौरभ मिश्रा के द्वारा हेड की जाएगी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक अभी MOU साइन किया विद द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल टू डेवलप MSME इकोसिस्टम इन द स्टेट। MSME इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया,
वो है सिडबी के साथ। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने एक MOU साइन किया वेस्ट बंगाल के साथ, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ताकि MSME इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सके और बेटर। अगर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें हम सिडबी बैंक की, तो शिवा सुब्रमण्यम रमन जी इनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे। 1990 अप्रैल में ये इस्टेब्लिश हुआ था सिडबी, और लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली, या कौन सा बैंक अभी रिसेंटली एंटर्ड इनटू द 4th को लेंडिंग एग्रीमेंट विद द लैंडिंग कार्ड, ताकि उनका इम्प्रूव हो सके फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो किस बैंक, कौन सा बैंक अभी 4th को लेंडिंग एग्रीमेंट में एंटर किया है लैंडिंग कार्ड के साथ? क्या नाम रहेगा बैंक का? तो वो रहेगा आपका पंजाब नेशनल बैंक, PNB। ठीक है, अगर PNB की बात करें, ये अभी फोर्थ को लैंडिंग एग्रीमेंट में एंटर हुए हैं लैंडिंग कार्ड के साथ, ये याद रखना आपको। ऑलराइट, और अगर पंजाब नेशनल बैंक की MD एंड CEO की बात करें तो वो रहेंगे SS मल्लिकार्जुना राव जी, एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली Which of the following was declared as an essential commodity till 30th of June 2022 by the central government? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 30 जून 2022 तक किसको एक असेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया गया है? सोयाबीन को। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, कई बार जो आपके सप्लायर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करना मतलब कलेक्ट करके रख लेंगे, स्टोर कर लेंगे। उससे क्या होगा कि मार्केट में उसकी कमी हो जाएगी, एंड कमी होगी तो जो प्राइस है आपका उस कमोडिटी का वो बढ़ जाएगा। तो ऐसा होल्ड ना कर पाए, इसीलिए ये भी स्टेप लिया गया है। सोया मील ये आपकी रहेगी जिसको असेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया गया है। एंड अंडर कौन से एक्ट, ये भी पूछा जाए तो अंडर द असेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955 ये डिसीजन लिया गया। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी रिसेंटली CII डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2000 जीता अंडर द मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिसेस? मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंडर CII डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, या फिर हम इसको कह सकते हैं एक और भी नाम से जाना जाता है CII DX अवार्ड ऑफ 2021, किन के द्वारा जीता गया आपको ये बताना है। तो HDFC बैंक ने इसको जीता। ठीक है, अगर हम CII की बात करें तो फुल फॉर्म क्या होती है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। मिस्टर TV नरेंद्रन इनके प्रेसिडेंट रहेंगे। ठीक है, डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? मिस्टर चरणजीत बनर्जी, और हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में HDFC बैंक का। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ स्पॉन्सर बैंक्स इन द रीजनल रूरल बैंक्स? रीजनल रूरल बैंक्स में शेयर क्या रहेगा स्पॉन्सर बैंक्स का? वो आपका 35% रहेगा। इसमें आपको RRBs की बात करनी है। ये RRBs होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। अगर रीजनल रूरल बैंक की बात करें तो इसमें आपको ऐसे याद रखना है, जो शेयर की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे शेयर की बात हो रही है, तो 15% तो होता है स्टेट गवर्नमेंट का, 50% होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जो बाकी 35% बचा वो होता है आपके स्पॉन्सर बैंक्स का। ठीक है, तो 35% आपका शेयर रहेगा स्पॉन्सर बैंक्स का रीजनल रूरल बैंक्स में। नेक्स्ट, RBI ने अभी एक इम्पोज कर दी 30 लाख रुपए की पेनल्टी फॉर डेफिशिएंसीज इन रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफ MUFG बैंक। MUFG बैंक पे 30 लाख रुपए की अभी RBI ने इम्पोज की है पेनल्टी। नेक्स्ट, इन विच सिटी, कौन सी सिटी में यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक फाउंडेशन स्टोन ले किया फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर DTTC एंड ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ DRDO? कहाँ पे ये ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ DRDO एंड आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर डेवलप करने की बात की जा रही है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यूपी से रिलेटेड आपको याद रखना है, वर्ल्ड का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कहाँ बनने जा रहा है? नोएडा। क्या नाम रहेगा उसका? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पे? यूपी में। इसके साथ साथ आपको याद रखना है वाराणसी में फर्स्ट रोपवे सर्विस ऑफ इंडिया, जो कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ की जाएगी। कहाँ पे? वाराणसी, यूपी में। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया NSDL पेमेंट्स बैंक के साथ ताकि एक नया फिनटेक प्लेटफॉर्म टारगेटिंग इंडियाज़ SME सेक्टर लॉन्च किया जा सके? कौन सी कंपनी रहेगी? इंडी पैसा वो कंपनी है जिन्होंने ये लॉन्च किया। अगर हम NSDL की बात करें, NSDL पेमेंट्स बैंक की बात करें तो अभिजीत
कमलापुकर, ये यहाँ के MD एंड CEO हैं और हेड क्वार्टर रहेगा इनका मुंबई महाराष्ट्र में। नेम द बैंक, उस बैंक का नाम बताओ जिस पहला बैंक बना है टू ऑफर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स वाया UPI अलॉन्ग विद NPCI। पहला इंडियन बैंक जो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स दे रहा है वाया UPI अलॉन्ग विद NPCI, वो कौन सा बैंक बना है आपको ये बताना है। इंडसइंड बैंक बना है वो, ठीक है। थाईलैंड की मी मनी नहीं, डी मनी, ये एक फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस है जिसको बाहर पैसा आप UPI के थ्रू सेंड कर सकते हैं डीप मनी पे, वो भी UPI यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी को रिसेंटली बैन कर साइंड अ बैंश्योरेंस एग्रीमेंट। ये बैंश्योरेंस क्या होता है, ये आपका समझ लीजिए बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट विद साउथ इंडियन बैंक टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस। लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी ने साउथ इंडियन बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया, तो वो रहेगी HDFC लाइफ ने ये साइन करा है, ठीक है। अगर HDFC लाइफ की बात करें तो विभा पदलकर जी, ये क्या है MD एंड CEO HDFC लाइफ बैंक की और HDFC लाइफ की, एंड इनके हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में। आइडेंटिफाई द बैंक, उस बैंक को आइडेंटिफाई करो जिसने रिसेंटली एक MOU साइन किया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ टू ऑफर बैंकिंग सर्विस इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में किस बैंक ने एक MOU साइन किया ताकि बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है कि सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किस बैंक ने एक MOU साइन किया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ, आपको ये बताना है। कौन सा बैंक रहेगा वो रहेगा आपका HDFC बैंक, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। HDFC बैंक ने एक MOU साइन किया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ ताकि बैंकिंग सर्विसेज ऑफर की जा सके अराउंड 4.7 करोड़ कस्टमर्स को इन द सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। अगर हम IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो 30 जनवरी 2017 को ये लॉन्च किया गया था। झारखंड रांची रायपुर छत्तीसगढ़ एज अ पायलट प्रोजेक्ट, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था इन जगहों पे। नेक्स्ट, हु रिसेंटली वन द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन 2021 अवार्ड। आई रिपीट, किसने अभी ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 का जीता, उस व्यक्ति का नाम बताइए क्या रहेगा। वो रहेंगे विरल सुधीर भाई देसाई जी। विरल सुधीर भाई देसाई जी, जिनको एक काफ़ी फेमस नाम इनका और है ग्रीन मैन ऑफ गुजरात, ठीक है। ग्रीन मैन ऑफ गुजरात भी बोला जाता है विरल सुधीर भाई देसाई को। इनको अभी ऑनर किया गया ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से, ठीक है। और याद रखना ये ओनली इंडियन है जिनको इस ऑनर से सम्मानित किया गया फॉर क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, who was recently appointed as the interim managing director and CEO of RBL बैंक। RBL बैंक के इंटर्म MD एंड CEO किनको अपॉइंट किया गया है, राजीव आहूजा जी को, ठीक है। विश्ववीर आहूजा जी, ये क्या है, ये स्टेप डाउन कर देंगे फ्रॉम द पोस्ट ऑफ MD एंड CEO और ये छुट्टी पर चले जाएंगे अब विश्ववीर आहूजा जी, तो इनको रिप्लेस कौन करेंगे, राजीव आहूजा जी, ठीक। ये तो हो गया। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योगेश दयाल, ये चीफ जनरल मैनेजर है RBI के, इनको अब एडिशनल डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ RBL बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। योगेश दया जी को हैज़ बिन अपॉइंटेड और RBI हैज़ अपॉइंटेड योगेश दया एज द चीफ जनरल मैनेजर ऑफ RBI एज द, इनको जो योगेश दयाल जी चीफ जनरल मैनेजर थे, इनको अब एडिशनल डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ RBL बैंक अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। और इनका टर्म पीरियड भी 2 साल का रहेगा, ये याद रखना योगेश दया जी का। तो करेक्ट आंसर यहाँ बन जाता है राजीव आहूजा जी, इनको इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अपॉइंट किया गया RBL बैंक का। विच कंट्री लॉन्च इनमारसेट 6 F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इनमारसेट 6 F1 ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि किन के द्वारा लॉन्च की गई, जापान के द्वारा लॉन्च की गई। ये बनाई भी किसके द्वारा गई है, इनमारसेट के द्वारा, ये कंपनी का नाम है जिनके द्वारा ये इनमारसेट 6 F1 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को डेवलप किया गया और जो
जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में छोड़ी गई। नेक्स्ट, नेम द सैटेलाइट जो कि रिसेंटली लॉन्च की गई थी चाइना के द्वारा, दैट कैन टेक हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स अप टू 5 मीटर्स ऑफ अर्थ। 5 मीटर्स ऑफ अर्थ की ये एक रेजोल्यूशन के साथ सैटेलाइट जो है एक इमेज ले सकती है, काफ़ी अच्छी, चाइना के द्वारा लॉन्च की गई थी। आपसे नाम पूछा जा रहा है उस सैटेलाइट का, Yuan-102E ये रॉकेट का, ये इस सैटेलाइट का नाम रहेगा। ठीक है, चलो इसके साथ साथ याद रखना है इसको लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ठीक है, 5 मीटर ऑप्टिकल सैटेलाइट O2 भी बोला जाता है इसको। एंड इस पे सैटेलाइट पे एक काफ़ी हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इनटू स्पेस यूजिंग एरियाना 5 रॉकेट फ्रॉम फ्रेंच जियाना। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, तीनों के द्वारा मिलकर ये जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया गया। कहा जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। एंड ये इवन स्पीड ऑफ लाइट से पहले के भी जाके देख सकता है कि वहाँ पे क्या हुआ था। मतलब ये किस रीजन में देखेगा, इंफ्रारेड रीजन को डिटेक्ट करेगा, मतलब हीट को डिटेक्ट करेगा यूनिवर्स में, एंड फिर उसके हिसाब से ये आगे फर्दर रिसर्च करेगा। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज अवॉर्डी देशमोंड टूटू पास्ड अवे रिसेंटली। किस फील्ड से रिलेटिव थे जब इनको नोबेल प्राइज़ सम्मानित किया गया 1984 में? मतलब इनको नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में दिया गया था? नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था 1984 में। ठीक है, और ये पूछा जा रहा है कौन थे? देशमुंड टूटू जी, ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, चलो, और इन्होंने कब 1984 में किस लिए? पीस के लिए तो मिला, बट 1984 में जब इन्होंने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया था साउथ अफ्रीका के ब्रूटल अपार्थाइड रिजीम के खिलाफ। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करंट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी? कितना है, कितने परसेंट? 3.7% आपका करंट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। अगला क्वेश्चन, आरबीआई इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 1 करोड़ रुपीज ऑन मोबिविक एंड स्पाइस मनी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ नॉर्म्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट्स ऑफ 2007। ठीक है, तो आरबीआई ने किन पे इम्पोज की 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी? मोबिविक एंड स्पाइस मनी पे अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली एप्पल फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? तो याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है। एंड जम्मू एंड कश्मीर इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स है। कभी आप जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे तो आप देखेंगे एप्पल की बहुत बड़े बाग है वहाँ पे, आपको एप्पल की खेती देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% वैक्सीनेशन ऑफ इट्स अडल्ट एलिजिबल पॉपुलेशन इन दिसंबर 2021? तो 100% वैक्सीनेशन किस स्टेट में देखने को मिली है? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। वैक्सीन से याद आता है एक वर्ड ऑफ द ईयर 2021 क्या है? वैक्स या फिर वैक्सीन, दोनों आप याद रखना, कुछ भी आ जाए लगा देना दोनों में से। ये किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा ये वर्ड दिया गया। और एक वर्ड होता है NFT नॉन फंजिबल टोकन, इसको वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा, कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी। इन विच स्टेट 97th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल 2021 सेलिब्रेटेड? कहाँ पे हुआ था ये वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल? मध्य प्रदेश में ऑब्जर्व किया गया था। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? ग्वालियर में। और ग्वालियर से मध्य प्रदेश में ऑब्जर्व किया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपको याद रखना है कि फर्स्ट ड्रोन मेला ऑब्जर्व किया गया था। फर्स्ट ड्रोन मेला इंडिया का कहाँ पे देखा गया था? ग्वालियर में, जो कि मध्य प्रदेश में सिटी है। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, इसने किस स्टेट ने इसमें सबसे टॉप पर या फिर सबसे अच्छा रैंक हासिल किया? सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक अमंग द 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, तो वो रहेगी तेलंगाना। ठीक है, और इन तेलंगाना में से चुकल क्लस्टर ऑफ कमारेड्डी इन टॉप पे रहा इन द रैंकिंग ऑफ अमंग द क्लस्टर्स की रैंकिंग में जुकल क्लस्टर टॉप पे रहा, और स्टेट्स की रैंकिंग में तेलंगाना टॉप पे रही। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट,
और इसके बाद ये तो था तेलंगाना टॉप पे। तेलंगाना के बाद याद रखना सेकंड पे आ जाता है तमिलनाडु और थर्ड पे आ जाता है आपका गुजरात। नेक्स्ट, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्यूल मोड व्हीकल, इसको क्या भी लिख देते हैं DMV, जो कि बोथ रोड एज वेल एज रेलवे ट्रैक्स पे रन कर सकती है। ऐसी व्हीकल किस कंट्री के द्वारा डेवलप की गई है अभी ये बतानी है आपको। तो जापान ने ये DMV ड्यूल मोड व्हीकल को डेवलप किया, जो कि बोथ रोड एज वेल एज रेलवे ट्रैक्स पे वर्क कर सकती है। नेक्स्ट, नेम द बैंक जो कि रिसेंटली जिसने लॉन्च किया ग्रीन फिक्स डिपॉजिट टू सपोर्ट द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बैंक जो रिसेंटली लॉन्च किया गया, जिस बैंक ने जिसने लॉन्च किया ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट टू सपोर्ट द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो कौन सा बैंक है? इंडसइंड बैंक है जिसने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट स्टार्ट किया है टू सपोर्ट यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये जो डिपॉजिट्स होंगे दे विल बी बैक्ड बाय इंश्योरेंस फॉर अप टू 5 लाख रुपीज़ की इंश्योरेंस से बैक्ड होंगे ये। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी रिसेंटली साइन किया है कोर लेंडिंग पार्टनरशिप विद MAS फाइनेंशियल सर्विस टू ऑफर लोन फॉर MSME। MSME को लोन प्रोवाइड करने के लिए किस बैंक ने एक कोर लेंडिंग पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट साइन किया MAS फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ? तो वो रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो AS राजीव MD एंड CEO रहेंगे और पुणे महाराष्ट्र आपका हेड ऑफिस रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट वाज द होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ नवंबर 2021 रीच्ड अ 12 ईयर हाई। तो कितने % तक चला गया था जो 12 ईयर हाई था? और याद रखना ये 2005 के बाद सबसे ज़्यादा हाई देखा गया है होलसेल प्राइस इंडेक्स में इन नवंबर 2021। तो कितने % हो गया था? वो आपका 14.23% तक चला गया था। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? DPIIT जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। उन्होंने ये डाटा रिलीज़ किया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वाज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? अतुल कुमार गोयल जी बने हैं। ठीक है, याद रखना। इनके साथ साथ आपको याद रखना है और ये पहले ये पूछा जाए कि अपॉइंटमेंट किया किसके द्वारा गया? ACC के द्वारा। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अतुल कुमार गोयल को अपॉइंट किया MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। इसके साथ साथ याद रखना सोमा शंकरा प्रसाद जी, इनको भी एक MD एंड CEO अपॉइंट किया गया। कौन से बैंक का? यूको बैंक का। आई रिपीट, सोमा शंकरा प्रसाद जी को MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है यूको बैंक का। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका रिसेंटली पार्टनर्ड विद NPCI एंड डैश बैंक टू इम्प्लीमेंट E-Rupee फॉर द पेमेंट्स ऑफ स्कॉलरशिप। E-Rupee याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है फॉर द पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने NPCI के साथ पार्टनर के और अलॉन्ग किस बैंक के साथ? मतलब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका प्लस NPCI अलॉन्ग विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों ने मिलकर E-Rupee को लॉन्च किया, जो कि एक पेमेंट ऑप्शन है फॉर स्कॉलरशिप। तो करेक्ट ऑप्शन SBI। NPCI की बात करें तो दिलीप असबे, ये क्या है? MD एंड CEO 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था। आपका NPCI मुंबई महाराष्ट्र में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। In which city of Madhya Pradesh Indian Army recently launched Quantum Lab in the military headquarters of war? इन द मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर एक क्वांटम लैब अभी रिसेंटली डेवलप की गई है मध्य प्रदेश में इंडियन आर्मी के द्वारा। पूछा जा रहा है किस सिटी में, आपके मध्य प्रदेश की किस सिटी में ये क्वांटम लैब डेवलप की जा रही है? तो इंदौर में। इंदौर से याद रखना है इसको क्लीनेस्ट सिटी भी बोला जाता है। और ये 5th टाइम है अभी कि इसको 5वीं बार भी क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है इंदौर को। नेक्स्ट, अभी दिसंबर में डैश वॉज रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। तो किन को रीअपॉइंट किया गया इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का MD एंड CEO? वो हैं आपके वासुदेवन PNG। इनको 3 साल के लिए रीअपॉइंट किया गया है, ये याद रखना। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जो अरुण रामनाथन जी, ये पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है,
पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंड इत्रा डेविस इनको सीईओ एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ इत्रा डेविस, अरुण रामानाथन जी, इनको पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि सीईओ होते हैं वो कौन है, वासुदेवन, और 3 साल के लिए इनको ये अपॉइंटमेंट मिली है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर इंक्लूडेड अंडर द शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934। कौन से शेड्यूल के अंदर? सेकेंड शेड्यूल के अंदर इनको लाया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड इन द 3rd एडिशन ऑफ द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। तो याद रखना ARIIA ये एक वो एजेंसी है इंडिया की जो कि इंडिया के पॉपुलर जो मोस्ट पॉपुलर या अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, उनकी रैंकिंग करती है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। ARIIA, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आई रिपीट, ARIIA ये क्या है? ये आपके जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं ना इंडिया के, उनको सिस्टमेटिकली रैंक करती है। और इस बार टॉप करने वाला जो 3rd एडिशन था आपका ARIIA की रैंकिंग का, उसमें टॉप किया है IIT मद्रास ने। सेकंड पे रहेगा आपका IIT बॉम्बे और थर्ड पे रहेगा आपका IIT दिल्ली, ठीक है। चलो नेक्स्ट, Which state has renamed one of its railway station as वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन in the remembrance of लक्ष्मीबाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट, नेमिंग कहाँ चल रही है आजकल? उत्तर प्रदेश में चल रही है। एंड आपको याद रखना है, इससे पहले इसका नाम क्या था? झांसी रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके अब क्या रख दिया गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंट्री विच कंट्री बिकेम द 4th न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक की 4th मेंबर कौन सी कंट्री बनी है अभी? इजिप्ट बनी है। नेक्स्ट, आरबीआई ने अभी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी केवाईसी अपडेशन की इन द बैंक्स अकाउंट टिल विच डेट? मतलब आरबीआई पहले केवाईसी नो योर कस्टमर अपडेशन की बात कर रहा था इन बैंक्स, उसकी डेट जो है एक्सटेंड कर दी है। किस डेट तक अब आप करा सकते हैं? 31 मार्च 2022 तक करा सकते हैं। इससे पहले 31 दिसंबर 2021 थी। नेक्स्ट, रॉस टेलर ने अभी अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी है इंटरनेशनल क्रिकेट से आफ्टर 2 टेस्ट सीरीज इन मार्च 2022। जो रॉस टेलर हैं ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। रॉस टेलर आपके याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि वर्ल्ड के पहले प्लेयर हैं जिन्होंने टोटल 100 प्लेस कंप्लीट करे थे, इंटरनेशनल मैचेस कंप्लीट किए थे T20 फॉर्मेट में, ODI फॉर्मेट में एंड टेस्ट फॉर्मेट में, ठीक है। इनके पास रिकॉर्ड है मोस्ट कैचेस का रिकॉर्ड है और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? न्यूजीलैंड के लिए। और याद रखना ये फॉर्मर कैप्टन भी थे न्यूजीलैंड के। डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम लॉन्च करने वाला वो पहली इंडियन स्टेट कौन सी बनी है? वो बनी है उड़ीसा। इसके साथ साथ याद रखना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम लॉन्च किया, ठीक है। और ई डायरी, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत नवीन पटनायक जी, इन्होंने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम लॉन्च किया और एक ई डायरी लॉन्च किया। ये ई डायरी एक पोर्टल कह सकते हैं जहाँ पे जाके आप यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन अपना सरकार की जो भी डाटा है आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट की डायरी है आप उसका डाटा सारा चेक कर सकते हैं, कोई भी सिटीजन ऑफ उड़ीसा यूजिंग देयर फ़ोन ओनली। सो ई डायरी ये एक पोर्टल रहेगा। साइमन बाइल्स, इनको अभी टाइम्स मैगजीन ऑफ 2021 घोषित किया गया था, ठीक है। टाइम्स मैगजीन 2021 के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, ठीक है। टाइम्स मैगजीन 2021 के एथलीट ऑफ द ईयर कौन बनी? सिमोन बाइल्स। याद रखना ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? ये जिमनास्ट हैं और ये एक अमेरिकन है। इन्होंने अभी कुछ मेंटल इश्यूज़ की वजह से अपने टोक्यो ओलंपिक गेम से विड्रॉ कर लिया था, ये भी याद रखना, ठीक है। तो एथलीट ऑफ द ईयर किनको घोषित किया गया टाइम्स मैगजीन 2021 के द्वारा? साइमन बाइल्स जो कि एक जिमनास्ट है और एक अमेरिकन है। नेक्स्ट,
क्यूम्ब्रे वियजा, ये एक वॉल्केनो का नाम है। क्यूम्ब्रे वियजा वॉल्केनिक एरप्शन, 3 मंथ तक इसके डेली एक्सप्लोजन और अर्थक्वेक्स आते रहे थे। पूछा जा रहा है किस कंट्री में आपका क्यूम्ब्रे वियजा वॉल्केनो लोकेटेड है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका स्पेन में लोकेटेड रहेगा ये वॉल्केनो। ठीक है, इंपॉर्टेंट। A good news to all our viewers. Recently, we have launched an course that is IBPS PO exam course. This is a 25-day free course to crack IBPS PO mains exams. This course duration will be from 13th of December to 14th of January. This course will help you to boost your preparation. This course could be attempted any number of time with no day limit. In this course, we'll be providing you information related to your admit card details, previous year cutoffs, notification related to such exam, and many others detail. Apart from this, you can see here we are covering the whole syllabus here, like data analysis on D3. Then you are getting quiz of 20 questions with such questions that you can prepare, that will help you, or they are the expected questions, they will be coming in the exams. So these questions are very helpful. These 20 questions you will be getting on daily basis, and they will help you to boost your preparation. So go fast and subscribe to this course. So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel, or if you are new to our channel, then do subscribe, because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862, and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price, and that will help you to boost your preparation.